1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 15 चैप्टर 18 to 16 वर्स, नहीं 18 वर्स से पढ़ते हुए जाएंगे, 16 चैप्टर के 1 वर्स से 16 वर्स तक निकल जाएंगे आगे, और फर्स्ट क्रॉनिकल्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर। हिंदी में 1 साल का बाइबल रीडिंग इस प्रकार से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का जो 18 वचन है उससे शुरू करेंगे और फिर आगे चलकर 16 अध्याय आएगा, उसमें होकर पहले वचन से 16 वचन तक निकल जाना है। और पहले इतिहास 5 अध्याय 6 अध्याय। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन 18th चैप्टर, जॉन 15th चैप्टर 18th वर्स से पढ़ते हुए आगे जाएंगे 16th चैप्टर के अंदर। जॉन्स गॉस्पेल 15th चैप्टर 18th वर्स से पढ़ते हुए जाएंगे 16th चैप्टर में। हम शुरू करेंगे 18th वर्स से। इफ़ द वर्ल्ड हेट यू, ये नो दैट इट हेटेड मी बिफोर इट हेटेड यू। इफ़ ये वेयर ऑफ द वर्ल्ड वुड लव हिज ओन, बट बिकॉज ये आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, बट आई हैव चोसन यू आउट ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर द वर्ल्ड हेटेथ यू। रिमेंबर द वर्ड दैट आई सेड unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. He that hateth me hateth my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now have they both seen and hated both me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, and he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. चैप्टर 16 में चले जाएंगे। अब यहाँ से फर्स्ट वर्स से 16th वर्स तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। Christ warneth his disciples of their sufferings, office of the Comforter. They profess their faith in Christ, peace in Christ, and in the world affliction. First verse से 16th वर्स तक पढ़ेंगे। These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. But now I go my way to him that sent me, and none of you asketh me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because
The prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे 16 अध्याय में। यदि संसार का बैर, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता, तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है, वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अब 16 अध्याय में जाएंगे आगे, और फिर 1 वचन से 16 वचन तक पूरा यहाँ करके ये आज का रीडिंग हो जाएगा। 16 अध्याय का 1 वचन से 16 वचन तक हमको और आगे पढ़ते हुए जाना है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए, तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। पवित्र आत्मा के कार्य। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता, तू कहाँ जाता है? परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा, तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे।
फर्स्ट क्रॉनिकल्स 5 चैप्टर 6 चैप्टर। हम पहले 5 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। द लाइन ऑफ Reuben, देयर हैबिटेशन। फर्स्ट वर्स से, नाउ द सन्स ऑफ Reuben, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ Israel, फॉर ही वॉज द फर्स्ट बॉर्न, बट फॉर एज मच एज he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph, the son of Israel, and genealogy is not to be reckoned after his birthright. For Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler, but the birthright was Joseph's. The sons, I say, of Reuben, the firstborn of Israel, were Hanok and Pallu, Hezron and Carmi. The sons of Joel, Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son, Micah his son, Reiah his son, Baal his son, Berah his son, whom Tilgath-Pilneser, king of Assyria, carried away captive. He was prince of the Reubenites, and his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief Jael and Zechariah, and Bela the son of Ajaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baal Meon. And eastward he is inhabited unto the entering in of the wilderness from the river Euphrates, because their cattle were multiplied in the land of Gilead. And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand, and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead. And the children of Gad dwelt over against them in the land of Bashan and to Salka. Joel the chief, and Shapham the next, and Janai and Shaphat in Bashan, and their brethren of the house of their fathers were Michael and Meshullam and Sheba and Jorai and Jachan and Zia and Heber. 7. These are the children of Abihail, the son of Huri, the son of Jeroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jehdo, the son of Booz, Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers. And they dwelt in Gilead, in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs of Sharon upon their borders. All this were reckoned by genealogies in the days of Jotham, king of Judah, and in the days of Jeroboam, king of Israel. The sons of Reuben and Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skillful in war, were 440,760 that went out to the war. And they made war with the Hagarites, with Jethur and Nephish and Nodab. And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them, for they cried to God in the battle, and he was entreated of them, because they put their trust in him. And they took away their cattle of their camels 50,000, and of sheep 200, and 50,000 of asses 2,000, and of men 100,000. For there fell down many slain, because the war was of God, and they dwelt in their steads until the captivity. And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land. They increased from Bashan unto Baal-Hermon, and Senir, and unto Mount Hermon. And these are the heads of the house of their fathers, even Ebher, and Ishi, and
and Eliel, and Ejriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jehdiel, mighty men of valor, famous men and heads of the house of their fathers. And they transgressed against the God of their fathers, and went a warring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them. And the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, and the spirit of Tilgath-Pilneser, king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites and the Gadites and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Hala and Habor and Hara, and to the river Gozan unto this day. Chapter 6. Sons of Levi, line of the priests, office of Aaron and his sons. The sons of Levi, Gershon, Kohath, and Merari, and the sons of Kohath, Amram, Izahar, and Hebron, and Uziel, and the children of Amram, Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar. Eleazar begat Phinehas. Phinehas begat Abishua, and Abishua begat Bukki. Bukki begat Ujji, and Ujji begat Jerahiah, and Jerahiah begat Meraioth. Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub, and Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz, and Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan, and Johanan begat Azariah, and he it is that executed the priest's office in the temple that Solomon built in Jerusalem. And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub, and Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum. And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah, and Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak, and Jehozadak went into captivity when the Lord carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar. The sons of Levi, Gershom, Kohath, and Merari, and these be the names of the sons of Gershom, Libni, and Shemai. And the sons of Kohath were Amram, and Izahar, and Hebron, and Uziel. The sons of Merari, Mahli, and Moshi. And these are the families of the Levites according to their fathers. Of Gershom, Libni his son, Jahath his son, Zimma his son, Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jaitiarai his son. The sons of Kohath, Aminadab his son, Korah his son, Asir his son, Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Asir his son, Tahath his son, Uriel his son, Ujjiah his son, and Shaul his son. And the sons of Elkanah, and the sons of Elkanah, Amasai, and Ahimoth. 26 verse. As for Elkanah, the sons of Elkanah, Zophai his son, and Nahath his son, Eliab his son, Joraham his son, Elkanah his son. And the sons of Samuel, the firstborn, Vashni, and Abiah. The sons of Merari, Mahali, Libni his son, Shimei his son, Uzzah his son, Shimea his son, Hagiah his son, Asaiah his son. And these are they whom David set over the service of song in the house of the Lord, after that the ark had rest. And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the Lord in Jerusalem. And then they waited on their office according to their order. And these are they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites, Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel, the son of Elkanah, the son of Jeroham,
Shoham, the son of Eliel, the son of Toa, the son of Zob, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Asmasai, the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah, the son of Tahath, the son of Asir, the son of Ebiasaph, the son of Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and the son of Israel. The son of Levi, the son of Israel, and his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph, the son of Berachiah, the son of Shimea, the son of Mikael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah, the son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah, the son of Ethan, the son of Zima, the son of Shimei, the son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi, and their brethren, the sons of Merari, stood on the left hand. Ethan, the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Maluk, the son of Hashabiah, the son of Amajiah, the son of Hilkiah, the son of Amji, the son of Bani, the son of Shamer, the son of Mahali, the son of Moshi, the son of Merari, the son of Levi. Their brethren also, the Levites, were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God. But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded. And these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son, Bukki his son, Ujji his son, Zeriah his son, Merioth his son, Amariah his son, Ahitob his son, Zadok his son, Ahimaaz his son. Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites, for theirs was the lot. And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it. But the fields of the city and the villages thereof they gave to Caleb the son of Jephunneh. And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jatir and Eshtemoa with their suburbs, and Helene with her suburbs, Debir with her suburbs, and Ashan with her suburbs, and Bet Shemesh with her suburbs. And out of the tribe of Benjamin, Geba with her suburbs, and Alimeth with her suburbs, and Anahoth with her suburbs. All their cities throughout their families were 13 cities. And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely out of the half tribe of Manasseh by lot 10 cities. And to the sons of Gershom throughout their families, out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, 13 cities. Unto the sons of Merari were given by lot throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, 12 cities. And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.
And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities which are called by their names. And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim. And they gave unto them of the cities of refuge, Shechem in Mount Ephraim with her suburbs. They gave also Gezer with her suburbs, and Jokmeam with her suburbs, and Beth Horon with her suburbs, and Aijalon with her suburbs, and Gath-Rimmon with her suburbs. And out of the half tribe of Manasseh, Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs. And Ashtaroth and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath. Unto the sons of Gershom, were verse 71 से आगे पढ़ रहे हैं. Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs. And out of the tribe of Issachar, Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs, and Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs. And out of the tribe of Asher, Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs, and Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs. And out of the tribe of Naphtali, Kadesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjath-Aim with her suburbs. Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs, and on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her. With her suburbs, and Jahzah with her suburbs, Kelemoth also with her suburbs, and Mephath with her suburbs. And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs, and Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs. पहला इतिहास 5 और 6 अध्याय पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से. 5 अध्याय. रूबेन की वंशावली. इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया. वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी. यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हम पहला इतिहास 5 अध्याय का 2 वचन आगे पढ़ते जाएंगे. इसराइल का जेठा तो पहले अध्याय से पहले फिर से पढ़ेंगे. रूबेन की वंशावली. इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया. वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी. यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था. इसराइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी. योवेल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का गया, राया, राया का बाल और बाल का पुत्र बेरा. इसको अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर बंदी बनाकर ले गया. वह रूबेनियों का प्रधान था. उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे,
ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येयल, फिर जकरिया और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोअर में और नबो और बलमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो परात महानद तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हगरियों से युद्ध किया और हगरी उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। याद की वंशावली 11 वचन से आगे। गाद की वंशावली। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानै और शापात, ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकायल, मशल्लुम, शेबा, योरै, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीहैल के पुत्र थे जो हुरी का पुत्र था। यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकायल का पुत्र, यह यशिशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र था और गुनी का पोता वही अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके गांवों में और शारोन के सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। 18 वचन से आगे। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हगरियों और यतूर, नपेश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली। और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गदहे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बना करके ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। पूर्व में बसे मनश्शे के लोग, फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बलहेरमोन और सनीर और हरमोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, यशी, इलीएल, अजरिएल, यिर्मयाह, होदव्याह और यहदीएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। पूर्व में बसे गोत्रों का बंधुआई में जाना। 25 वचन से आगे। परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन के समान हो लिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत-पिलनेसेर का मन उभारा और उन्होंने उन्हें, अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वही रहते हैं। महायाजकों का वंश क्रम। 6 अध्याय 1 वचन से। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। अमराम की संतान हारून,
मूसा और मरियम, हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार, एलियाजार से पिनहास, पिनहास से अबीशू, अबीशू से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरिया, जरिया से मरायोत, मरायोत से अमरिया, अमरिया से अहीतूब, अहीतूब से सादोक, सादोक से अहीमास, अहीमास से अजरिया, अजरिया से योहानान और योहानान से अजरिया उत्पन्न हुआ, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजरिया से अमरिया, अमरिया से यहीतूब, यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम, शल्लूम से हिल्किया, हिल्किया से अजरिया, अजरिया से सराया और सराया से बहुसादाक उत्पन्न हुआ। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम के नबूकदनेस्सर के द्वारा बंदी बना करके ले गया, तब यहोसादाक भी बंदी होकर गया। लेवी का अन्य वंशज, 16 वचन से आगे। लेवी के पुत्र गेरशोम, कहात और मरारी, और गेरशोम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। मरारी के पुत्र महली और मूशी। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार लेवियों के कुल ये हुए, अर्थात गेरशोन का पुत्र लिबनी हुआ, लिबनी का यहात, यहात का जिम्मा, जिम्मा का योआ, योआ का इद्दो, इद्दो का जेरह और जेरह का पुत्र यतरे, यातरे हुआ। फिर कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ, अम्मीनादाब का कोरह, कोरह का असीर, असीर का एल्काना, एल्काना का एबियासाप, एबियासाप का असीर, असीर का तहत, तहत का करी उरियल, उरियल का उजिया और उजिया का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एल्काना के पुत्र अमासै और अहोमात, अहीमोत, एल्काना का पुत्र सोपई, सोपई का नहत, नहत का एलियाब, एलियाब का यरोहाम और यरोहाम का पुत्र एल्काना हुआ। शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल और दूसरा अबिया। फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिबनी, लिबनी का शिमी, शिमी का उज्जा, उज्जा का शीमा, शीमा का हग्गिया और हग्गिया का पुत्र असाया हुआ। मंदिर के गायक, 30-31 वचन से आगे। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया, जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, शमूएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, यरोहाम यलियल का, यलियल रोह का, तोह का, तोह सूप का, सूप एल्काना का, एल्काना महत का, महत अमासै का, अमासै एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सपन्या का, सपन्या तहत का, तहत असीर का, असीर एबियासाप का, एबियासाप कोरह का, कोरह यिसहार का, यिसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इस्राएल का पुत्र था। और उसका भाई असाप जो उसके दाहिने खड़ा हुआ करता था, वह बेरेक्या का पुत्र था, और बेरेक्या शिमा का, शिमा मिकायल का, और मिकायल बासेया का, और बासेया मल्किया का, मल्किया एतनी का, एतनी जेरह का, जेरह अदाया का, ये अदाया एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमी का, शिमी यहत का, यहत गेरशोम का, गेरशोम लेवी का पुत्र था। बाईं ओर उनके भाई मरारी खड़े होते थे, अर्थात एताव जो किशी का पुत्र था, और किशी अब्दी का, अब्दी मल्लुक का, मल्लुक हशबिया का, हशबिया अमस्या का, अमस्या हिल्किया का, हिल्किया अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमिर का, शेमिर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। और इनके भाई जो लेविया थे वे परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे।
हारून के वंशज 49 वचन से आगे, परंतु हारून और उसके पुत्र होम बलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी। हारून के वंश में ये हुए, अर्थात उसका पुत्र एलियाजार हुआ और एलियाजार का पिनहास, पिनहास का अबीशू, अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरया, जरया का मरायोत, मरायोत का अमरिया, अमरिया का अहीतूब, अहीतूब का सदोक और सदोक का अहीमास पुत्र हुआ। लेवियों के निवास का भाग 54 वचन से आगे, उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं, अर्थात कहात के कुलों में ये पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर के चरागाहों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र कालेब को दिए गए। हारून के संतान को शरण नगर, हेब्रोन और चरागाहों समेत लिब्ना और यत्तीर और अपने अपने चरागाहों समेत एश्तमो, अपने अपने चरागाहों समेत हीलेन और दबीर, आशान और बेत शेमेश और बिन्यामिन के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गेबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे। तब शेष कहातियों के गोत्र के कुल, अर्थात मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। गेरशोमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वाले मनश्शे के गोत्र में से 13 नगर मिले। मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। अतः इस्राएलियों ने लेवियों को ये नगर चरागाहों समेत दिए। उन्होंने यहूदियों, शिमोनियों और बिन्यामीनियों के गोत्रों में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। कहातियों के कई कुलों को उनके नाम, उनके भाग के नगर एप्रैम के गोत्र में से मिले। अतः उनको अपने अपने चरागाहों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश का शकेम जो शरण नगर था, फिर गेजेर, योकमाम, बेथोरोन, अयालोन और गत्रिमोन और मनश्शे के आधे गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुल को मिले। फिर गेरशोमियों को मनश्शे के आधे गोत्र के कुल में से तो अपने अपने चरागाहों समेत बाशान का गोलान और अश्तारोत और इस्साकार के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत कदेश, दाबरात, रामोत और आनेम और आशेर के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत माशाल, अब्दोन, हुकोक और रहोब और नप्ताली के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गलीत का कदेश, केदेश, हेमोन और किरियातिम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरारियों को जबूलून के गोत्र में से तो अपने अपने चरागाहों समेत शिमोन और ताबोर और यरीहो के पास की यरदन नदी के पूर्व और रूबेन के गोत्र में से तो अपने अपने चरागाहों समेत जंगल का बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपाता और गाद के गोत्र में से अपने अपने चरागाहों समेत गिलाद का रामोत, महनैम, हेशबोन और याजेर दिए गए। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 14 चैप्टर 22 वर्स से 31 वर्स, नंबर्स 34 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 वचन से 31 वचन और गिनती की पुस्तक 34 वचन, 34 अध्याय, 14 अध्याय मरकुस का 22 से 31 वचन, गिनती की पुस्तक 34 अध्याय। हम
इसे अपने व्यक्तिगत समय में, अपने पर्सनल टाइम में पढ़ना है। जब हम इसे पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे तो इसके अंदर से हमको परमेश्वर जो वचन सिखाएगा, जो हमको बदलने के लिए, फैसले बनाने के लिए, या कोई भी अवस्था में परमेश्वर हमको कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, हमको कोई बातें बदलने के लिए, आदत में या कोई तरह से जीवन की शैली में कुछ करने के लिए कहेगा, तो वैसा हमने उन वचनों को नोट्स बना कर लेना है, उसके अनुसार हमने चलना है। अगर हम इस प्रकार से चलते रहेंगे तो 2 साल के अंत में परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के काम आ जाता है। उसके राज्य के उपयोग में आने के लिए हम ऐसा होना ज़रूरी है, और ये होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है। हम निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।